You have studied the power trading, you have studied the power system analysis and automatic generation control. 3 units have been covered. In this unit, the part of this is the excitation system. Excitation system, while describing the AGC, we also describe some introduction of the excitation system which we will revise here also. We know the role of the synchronous generator is to supply the electrical power. This electrical power, we know not only the active power, it is a reactive power also. So there are two types of power, active power and reactive power, and it is a synchronous generator. If you know the synchronous generator, say the initial circuit of synchronous generator is like this is the synchronous generator, where this is the field winding. This winding, field winding of synchronous generator is on the rotor. See here there is a rotor. You see inside this there is a rotor, and on the rotor there is a field winding. Okay. When the field rotates, in the field winding the DC current flows, and when the field rotates there is a rate of change of flux here, and because of rate of change of flux here the induced EMF is produced. This induced EMF let it be because of this field current IF, this is the EF excitation, and because of this EF there is some drop here, so EF, and after having some drop we get the terminal voltage E. It means E plus J times IA excess plus, or you can say R. IA RA. Okay. Drop here plus drop here. This is the excitation voltage here. This is the equation. Okay. Is there any question up to now? यहाँ तक आपको पता होता है. In the electrical machines you might have studied this is the synchronous generator. Equation of the synchronous generator is this. This is the equivalent circuit of the synchronous generator. And if you draw the phasor diagram of this, then let it be the terminal voltage E. Say it is terminal voltage V, and this is the current I. Angle between V and I, say it is angle phi. So then this D plus IARA. What is the IA? This in the direction of current I, there is IARA drop. And JIA excess, it is a JIA excess. Okay, so this is the voltage. And this angle is so now what is the relation? V C plus IARA. If you write it as here, V plus IARA cos phi, IARA cos phi. Okay, is this clear? It is IARA, so in this direction it is IARA cos phi, and say this is a JIA axis, and in this direction, say it is a 90-degree angle, so this will be the J prime. IA excess sin phi. This is equal to EF. Okay, this is clear. This EF is equal to this equation. From here, if you see this EF minus B, EF minus B is equal to IARA cos phi plus IA excess sin phi. Here phi is the power factor angle. So if you multiply here, P multiply D and divided by B. So what is this? What is this? DI cos phi. What is DI cos phi? क्या होगा DI cos phi? Active power. DI cos phi, DI cos phi is active power T into RA mutual resistance plus DI sin phi. What is DI sin phi?
Here Shanta is Q into XS divided by. Okay, so this is the voltage regulation, means voltage drop from here to here. In the synchronous machine, there is voltage drop. This voltage, now this is the XS, and if the transmission line, if the generator here, then there is a reactance of the synchronous generator, then there is a reactance of the transmission line, then this X will be the sum of the two. So now, what will be the voltage drop here? Because our aim is, हमारा purpose क्या होता है? We have seen in the AGC that our aim is to supply a frequency of nearly 50 Hz. Means frequency should be 50 Hz. Similarly, the voltage should be 1 per unit. 1 per unit maybe 220, 400, 11 kV, 66 kV, whatever it is. So voltage should be 1 per unit. Now, what it is saying, there is a voltage regulation, voltage drop. From here to here, there is a voltage drop of this. And our aim is to reduce this voltage drop. And you see this voltage drop, you have seen, it depends upon PI, RA and XS. And P and Q. P and Q, what is P and Q? What is P and Q? How much power you are taking from here? At terminal, how much power you are taking? This is a, for example, this is a load. So from here you are taking P plus Q. This power आप ले रहे हैं. There is industry, there is synchronous generator, there is industry, and they are connected through a line. Then the input power, the power taken by the industry is PI plus AQI. Then what is the voltage drop? It is given by this. But we don't want. We want the voltage drop should not be there. It should be 1 per unit. And this voltage drop is depending upon this RA and XS. Voltage drop is dependent on this square. In case of a transmission line or even in the synchronous generator, resistance is very small in comparison to the reactance. So if we neglect this resistance, you see the voltage drop mainly depends upon the Q. Okay, so रिएक्टिव पावर की वजह से हमारा क्या होता है, वोल्टेज सिस्टम का डाउन होता है. नाउ and as we say, if we neglect this resistance, then what will be the phasor diagram? If we redraw this, उसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे, तो it is a V and this is a current I, this is angle phi and this is I axis. Okay, and this is the E here. Now we know this P is equal to Di cos phi. P is equal to Di cos phi. And we also know the P is equal to, in case of synchronous generator, you know power P is equal to E G by X sin delta. ये बड़ा है आपने कहीं power is equal to E by X sin delta. So what is the meaning of this? Our aim is to maintain the constant voltage. If we want to maintain the constant voltage, then for particular amount of power, this I cos phi should be constant. इसका मतलब क्या हुआ? This I cos phi. I cos phi this should be constant. इसका मतलब क्या हुआ? I जो भी हमारा करंट है, it can be this. करंट कुछ भी हो सकती है, but it has to be on this because I is constant. Since I is constant, तो locus of the current will be on this. I ये हो सकती है ऐसा. Lagging not leading, but it will be on this because I is constant for particular amount of P. If the P is constant, देखिए mainly we have seen mainly the voltage deviation is because of the Q. तो हमने माना P constant है. अगर P constant है तो करंट हमारा इस लोकस का होगा. Similarly here, and we want to maintain the constant voltage.
V, we want at constant P, and we want to maintain the V constant, and the E sin delta is also constant. So it is this angle between V and E, it is called the power angle delta. So E sin delta, this is E sin delta, this is also constant. This you can say this is I cos phi, and from here to here it is E sin delta. It is constant, and from here to here it is I cos phi is constant. Now suppose if the current is lagging, now you see if the current is lagging, then this is the constant voltage. We want a constant voltage. So constant voltage, this is IXS, so this should be the EF. मतलब हमारा एक्साइटेशन इतना होना चाहिए, Now, if current in case of current lagging, say current is leading. अगर आपका current इसकी जगह current हमारा leading हो, current is for example this. अब I एक्सेस क्या होगा? If this is current, I cos phi is constant. This is V, this is current I, so I एक्सेस क्या होगा? What is I एक्सेस? I का डायरेक्शन I एक्स, देखिए इसके परपेंडिकुलर ये था. You see, I एक्सेस is perpendicular to the I. अब I की डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई. So what will be the I एक्सेस? अब I एक्सेस क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा I एक्सेस, because I एक्सेस is the J I एक्सेस. So this will be the perpendicular to this. I एक्सेस. Is this one clear or not? And so this will be the E. इससे क्या कंक्लूजन निकला? अगर आपका लैगिंग करंट है, if the current is lagging, then excitation has to be this. If current is leading, then excitation has to be this. Excitation ये होना चाहिए. And if current is unity power factor, अगर करंट आपका ये I, अगर करंट ये है I, so what will be the in that case I एक्सेस क्या होगा? अगर करंट ये है तो I एक्सेस का डायरेक्शन क्या होगा? Getting the point or not? अगर करंट ये है तो I एक्सेस की डायरेक्शन होगा करंट के परपेंडिकुलर. तो दिस विल बी दी I एक्सेस. And when this is I axis, in that case this is E. This is called the E. This is called the normal excitation. This is normal excitation. This is over excitation. This is under excitation. मतलब फिर एक यहाँ conclusion एक बार फिर समझ लें. If the current is lagging, then we have to make the system over excited. If the current is leading, then we have to make the system under excited. And if the current is unity power factor, we have to make it as a normal excitation. Okay? इससे क्या होगा? And suppose अब आप अगर करंट लैगिंग है और ये क्या कह रहा है, इससे क्या कंक्लूजन निकला? अगर करंट लैगिंग है तो एक्साइटेशन कितना होना चाहिए? If the current is lagging, then what should be the excitation? हाँ, कितना होना चाहिए? Over excited, under excited या normal excited? क्या होना चाहिए? Over excited. If the current is lagging, then our synchronous generator should be over excited. Okay? If the current is leading, what should be the excitation? Under excitation. ठीक है? हाँ. If the current is normal, is unity power factor. If the current is unity power factor, what should be the excitation? Normal excitation. Okay. तो ये पता लग गया. इसका मतलब क्या हुआ? करंट लैगिंग होगी या लीडिंग होगी? ये किस पे डिपेंड करेगा? किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? लैगिंग लीडिंग. करंट लैगिंग होगी या लीडिंग होगी, इस पे डिपेंड करेगा लोड.
हमारा लोड कैसा है, एंड लोड इज नॉट इन आवर हैंड। लोड हमारे हाथ में है कि नहीं है? नहीं सर। लोड इज इन नॉट आवर हैंड, सो इट मीन्स current is continuously changing because load is changing, and according to the load we have to control the excitation। ठीक है नहीं? ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए ना, प्लीज लिसन, सपोज करिए कि करंट हमारा लैगिंग था और हमने एक्साइटेशन कंट्रोल नहीं किया, एक्साइटेशन नॉर्मल रखा। एक्साइटेशन माने क्या? यस प्लीज, हाँ ये इधर से एक्साइटेशन कहाँ है? ये एक्साइटेशन, इसमें एक्साइटेशन कहाँ है? और ये एक्साइटेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, कहाँ से आ रहा है? आइए फील्ड करंट से जो होगा, इसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू 4.44 f I K ओमेगा इस IF, IF पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपका सपोज आपने देखिए, अगर करंट लैगिंग था तो इसे क्या, यहाँ से क्या करना था, ओवर एक्साइटेड करना था, लेकिन आपने ओवर नहीं किया, नॉर्मल एक्साइट किया, तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन? कौन बताएगा? एज पर द फेसर डायग्राम फॉर लैगिंग टाइप ऑफ लोड वी हैव टू मेक द सिस्टम ओवर एक्साइटेड, लेकिन हमने एक्साइट ओवर नहीं किया, नॉर्मल एक्साइटेशन किया, तो व्हाट विल हैपन? उससे क्या होगा? जस्ट टू सी, देखिए, जस्ट टू मेक दिस एज ए नो, ये लैगिंग है और हमें ये करना था, ये ओवर, जब ये ओवर होगा माइनस दिस, ओवर एक्साइटेशन माइनस दिस इज इक्वल टू ई। अब हमने इसको नॉर्मल रखा, ये हमने नॉर्मल एक्साइटेशन रखा और करंट हमारी लैगिंग थी, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये क्या होगा? हाँ, उसने बताया धीरे जाओ। हमारा करंट लगाया गया तो आपका, हाँ, अगर आपने देखिए एक्साइटेशन इतना ही रखा और आपका ये लैगिंग था, तो आइए एक्सेस तो इसमें परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर होने के लिए ये ऐसा आई एक्सेस ये इसके परपेंडिकुलर ये होगा, इसका मतलब वोल्टेज अब इतना नहीं रह पाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। अगर आपने लैगिंग और लीडिंग के अकॉर्डिंगली, लोड के अकॉर्डिंगली ओवर एक्साइटेड अंडर ऐसा नहीं किया, तो वोल्टेज हमारा ये कॉन्स्टेंट नहीं रह पाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। दैट वी डोंट वांट टू, तो हम वोल्टेज को कंट्रोल करना था, वी डोंट वांट वोल्टेज टू बी रिड्यूस, वोल्टेज 1 पर यूनिट बना रहे हैं, ये हम चाहते हैं। इसके लिए क्या हुआ, वी हैव टू कंटिन्यूसली कंट्रोल द एक्साइटेशन, इसके अकॉर्डिंगली, लोड के अकॉर्डिंगली। लोड का मतलब क्या, लोड हमारा लैगिंग है या लीडिंग है? लैगिंग का मतलब अगर हमारा लैगिंग करंट है या लोड हमारा क्यू अगर ज़्यादा है डिमांड में, लैगिंग का मतलब क्या है, क्यू ज़्यादा है तो हमारा क्यू यहाँ सप्लाई करना पड़ेगा। डिमांड में अगर क्यू कम है तो एक्साइटेशन कम करना पड़ेगा, मतलब सप्लाई कम होगी। जिस पर डिपेंड करता है, हमें क्यू बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए हमें सिस्टम को ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेशन करना पड़ता है। अब लोड हमारा क्यू एक्स्ट्रा है, नॉर्मल से ओवर है या मिनिमम, ये पता कैसे लगेगा, ये वोल्टेज से पता लगता है। मतलब हम कोई इंडस्ट्री कितना क्यू ले रहा है उसको नहीं सेंस करते, हम देखते हैं क्यू हमारा सिस्टम का वोल्टेज कितना हुआ। अगर वोल्टेज कम हुआ तो हमने क्यू इंजेक्ट करना है, या वोल्टेज कम हुआ तो क्यू इंजेक्ट करना है, इसका मतलब ओवर एक्साइट करना है। और क्यू ज़्यादा हुआ तो अंडर एक्साइट करना है, तो इसलिए हम ओवर एक्साइट अंडर एक्साइट करते रहते हैं, या क्यू को कम ज़्यादा करते रहते हैं। सो हाउ टू, अब इसी को हम कहते हैं टू कंट्रोल द वोल्टेज को कंट्रोल करना, दिस इज द एक्साइटेशन सिस्टम। मतलब एक्साइटेशन सिस्टम मीन्स वी हैव टू कंट्रोल दिस फील्ड वाइंडिंग कंटिन्यूअसली डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज हियर। इस वोल्टेज को सेंस करके हमें इस फील्ड वाइंडिंग को कंटिन्यूअसली कंट्रोल करना है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्साइटर।
इसका नाम है एक्साइटर एंड कंट्रोलिंग द एक्साइटर कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड द एक्साइटेशन सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम विद द एक्साइटर इज कॉल्ड द एक्साइटेशन सिस्टम। ओके, इसको कहते हैं हम एक्साइटेशन सिस्टम। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना था? जो मैंने बताया उसमें से कुछ पूछना किसी को? नाउ प्लीज लिसन। While describing the automatic generation control, we told there are two loop. एक तो load frequency control loop है, दूसरा excitation control loop है। तो now we will study this excitation control loop। ये जो हमारा है, this you see, this is the excitation control। ये जनरेटर देखिए, सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर में रोटर, इसके अंदर रोटर है, फील्ड वाइंडिंग रोटेट हो रहा है। तो जब फील्ड वाइंडिंग रोटेट हो रहा है, ये इसमें रोटर है, इसमें फील्ड ये यहाँ पे फील्ड करंट आ रहा है, यहाँ पे फील्ड करंट आ रहा है, डीसी फील्ड एंड दिस इज रोटेटिंग। यहाँ फील्ड डीसी फील्ड करंट और एक्साइटेशन, दिस इज रोटेटिंग। तो जब ये रोटेट हो रहा है तो जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ ये ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप और स्टेप डाउन जो की जरूरत है। अगर हमें ट्रांसमिशन लाइन में भेजना है तो स्टेप अप करना पड़ेगा, लेकिन भाई यूज़ करना है एक्चुअली सिस्टम में यूज़ करना है तो स्टेप डाउन भी करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के थ्रू सपोज स्टेप अप करके हमें ग्रिड में भेजा। अब ग्रिड में अगर वोल्टेज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जैसा आपने बताया था, डिपेंडिंग अपॉन द लोड कनेक्टेड ऑन द ग्रिड, हमारा ये वोल्टेज क्या होगा, वेरी करेगा। तो वोल्टेज को यहाँ से सेंस जस्ट बताया था, वोल्टेज को व्हाट इज द पीटी विल मेजर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मेजर्स द वोल्टेज हियर। तो यहाँ से ये वोल्टेज मेजर किया, इसको रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर दिया एंड इट इज कंपेयर्ड हियर। उसको क्या करते हैं, कंपेयर कि 1 पर यूनिट है कि नहीं। अगर 1 पर यूनिट है तो सिग्नल 0, तो जितना करंट जा रहा था फील्ड वाइंडिंग में उतना करंट जाता रहेगा। अदरवाइज इस सिग्नल को रेक्टिफाई करके एक्साइटर क्या करेगा, फील्ड को बढ़ाएगा या कम करेगा, मीन ओवर एक्साइट करेगा या अंडर एक्साइट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज। अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो ओवर एक्साइट करेगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल से तो अंडर एक्साइट करेगा। तो ये यही इसका कंट्रोल लूप, इसका नाम है एम्पलीफायर का। ये एक्साइटर कंट्रोल सिस्टम भी है, यहाँ पे एक्साइटर भी है और कंट्रोल सिस्टम भी है, दोनों मिला के स्पीड करंट को कंट्रोल करता है। इस चीज़ पॉइंट क्लियर और नोट, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। Theory, concept and this figure. If any question up to here you can ask. यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। There are, देखो आपने कंसेप्ट समझा, why the constant voltage is required and what is the theory behind it, why, how we control the, there is need of controlling the excitation. With the field current, there is need to control the field current to maintain the constant voltage. डिपेंडिंग अपॉन इट इज ओवर एक्साइटेड और अंडर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर लैगिंग करंट वोल्टेज ज़्यादा है, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो सिस्टम को ओवर एक्साइट करना पड़ेगा, अदरवाइज कम है तो अंडर एक्साइट करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मीन्स एंड हाउ इट इज बीइंग डन, ये करते कैसा है, दिस इज द एक्साइटेशन सिस्टम। एक्साइटेशन सिस्टम आर ऑफ वेरियस टाइप, AC एक्साइटेशन सिस्टम एंड DC एक्साइटेशन सिस्टम, ठीक है। फर्दर AC एक्साइटेशन सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू द वेरियस टाइप्स एंड DC एक्साइटेशन सिस्टम आर आल्सो डिवाइडेड इनटू द क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। सो दिस इज वन ऑफ देम, इट इज ए rotating self excited exciter with direct acting static type voltage regulator, इसका नाम है सेल्फ एक्साइटेड। एक तो पायलट एक्साइटेड, एक सेल्फ और शंट एक्साइटेड आप जानते हैं, यू नो द सेल्फ एक्साइटेड शंट एक्साइटेड, मीन सेल्फ और सेपरेटली एक्साइटेड। और दूसरा फिर डायरेक्ट एक्टिंग स्टैटिक टाइप वोल्टेज, डायरेक्ट एक्टिंग। अब इसी नाम देख लें, अब इसको समझें। दिस इज द सिंक्रोनस जनरेटर, ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। पिछले जो हमारा फिगर था उसमें आपने यही देखा था, ये दोनों चीज़ें आपने देखी हुई हैं। एंड वी टोल्ड दिस इज रोटेटिंग,
this field winding is rotating and because of this rotation field winding here induced EMF is produced. जो हमने एक्सप्लेन किया इसकी थ्योरी एक्सप्लेन की। अब इसको फील्ड करंट मिलेगी कहाँ से? जैसे हमने वहाँ दिखाया था, दिखाया है, from there this field current is coming. So the field current is coming from this DC generator. It is a DC generator small. जैसे सपोज करिए आपका सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटिंग स्टेशन पे सपोज करिए 100 MVA 100 मेगावाट का आपका सिंक्रोनस जनरेटर है, तो और फील्ड करंट सपोज 1% या 0.1% अगर फील्ड करंट की, वैसे तो 0.1% फील्ड करंट की रिक्वायर्ड, तो कितनी फील्ड करंट चाहिए, कितने मेगावाट की? 100 मेगावाट का जनरेटिंग स्टेशन है, 0.1 फील्ड करंट अगर उसमें पावर लगी तो कितना होगी? 100 किलोवाट। मीन दैट इज आल्सो वेरी बिग। तो ये, लेकिन इसका साइज इसके कंपैरिजन में 1% 2% ही हुआ। यहाँ पर ऐसा तो दिखा रहे हैं, लेकिन दिस इज वेरी बिग मशीन, दिस इज वेरी स्मॉल मशीन। तो यहाँ से ये जनरेटर है, दिस इज द डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर से फील्ड करंट आएगी, लेकिन डीसी जनरेटर में फील्ड करंट कहाँ से आएगी? डीसी जनरेटर में फील्ड करंट कहाँ से आएगी? उसमें रोटेशन होगा, डीसी जनरेटर भी तभी काम करेगा तो उसका रोटर रोटेट करेगा। तो रोटर ऑफ दिस इज कनेक्टेड विद दिस, रोटर दोनों एक ही साथ से, जो टरबाइन से, ये किससे कनेक्टेड है? टरबाइन से। जो मेन सिंक्रोनस मशीन है हमारा, उसका रोटर जिस टरबाइन से कनेक्टेड है, सेम शाफ्ट के थ्रू हमारा ये भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ही हमारा ये रोटेशन भी हो रहा है, जैसे फ्लक्स हो रहा है, इसमें ये प्रोड्यूस हो रहा है, और कम्यूटेटर के थ्रू इसी से डीसी मिल रहा है। और ये क्या है? सेल्फ एक्साइटेड, इसी से ही इसका फील्ड, आपने डीसी मशीन पर पढ़ाया हुआ ही है, तो उसी का सेल्फ एक्साइटेड मीन्स इसी से ही इसी की वोल्टेज से इसका फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ एक्साइटेड। और सेल्फ एक्साइटेड रोटेटिंग टाइप, रोटेटिंग का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा रोटेट कर रहा है इसके साथ, साथ में ये सिस्टम ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग टाइप। ओके, तो अब देखिए यहाँ से ये क्या करेगा, जैसे हमने आपने अभी जस्ट फिगर दिखाया था, इसका वोल्टेज अगर 1 पर यूनिट नहीं है, 1 पर यूनिट है नो प्रॉब्लम, अदरवाइज इफ इट इज नॉट 1 पर यूनिट इट विल बी मेजर्ड बाय डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। वो भी वोल्टेज है मेजर करेंगे डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर से, एंड इट इज कन्वर्टेड टू डीसी हियर, क्योंकि यहाँ एसी है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। और ये इसके अकॉर्डिंगली यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट, मतलब सपोज करिए वोल्टेज ज़्यादा है, पर यूनिट वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज ज़्यादा है तो इसमें ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, इसके थ्रू ये इसमें करंट जा रहा है। तो ये जब ये करंट ज़्यादा है तो इसमें जो करंट होगी, करंट की वजह से ये प्लंजर के थ्रू ये अप एंड डाउन जाएगा। इसमें फील्ड अगर 1 एम्पियर 1 पर यूनिट है, 2 एम्पियर 2 पर यूनिट है, 2.3 है, उसके अकॉर्डिंगली इसका फोर्स, बिकॉज व्हेनेवर द करंट फ्लोज देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये आयरन का बना हुआ है, तो उसके प्लंजर के थ्रू आपका ये ऊपर या नीचे इज दिस रोस्टेड, दिस इज द रोस्टेड रेजिस्टेंस। तो दिस रेजिस्टेंस विल चेंज, इसके रेजिस्टेंस चेंज होने से क्या होगा? इस सर्किट में अगर इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, इसमें अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो क्या होगा? ये डीसी का जो फील्ड है, इसकी अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, वोल्टेज उतना ही है, तो क्या होगा? इसकी करंट कम हो जाएगी। इसी करंट कम होने से इसकी करंट कम होने से इसका फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम करने से यहाँ का वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है? मतलब क्या हुआ आपका, ये फाई पे डिपेंड करेगा, ये उसका फॉर्मूला सिंक्रोनस का। और डीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डीसी मशीन में जो वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला कौन बताएगा? ऑन दिस साइड वॉइस इसमें डीसी जनरेटर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है?
तो ज़्यादा ब्रेक कौन चला रहा है इसके लिए ये फाइल हाँ खड़े होकर जरा दोबारा बताओ ना। PZ5N/68 ये क्या है? वोल्टेज का EMF का फॉर्मूला 46 उसका क्या है? तो एनी प्लीज अपने तो लगी थी फिलहाल तो इसका मतलब ये फ्लक्स ये यहाँ से रेजिस्टेंस चेंज होगा, कोई फील्ड करंट चेंज हो जाएगा इसका। B इक्वल टू दिस इक्वल टू या इसमें इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इस का करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने से इसका फ्लक्स करंट कम होने से इसका E इक्वल टू K फाई ओमेगा फाई पे डिपेंड कर रहा है। ये वोल्टेज कम हो जाएगा, ये वोल्टेज कम होने से ये फील्ड करंट कम हो जाएगी। फील्ड करंट कम होने से हमारा इसका एक्साइटेशन कम हो जाएगा और अगर ये बड़ा हुआ था उसको कम कर देगा। तो इस तरह यहाँ वोल्टेज बड़ा है या कम है ये ऊपर नीचे जाकर रेजिस्टेंस को इसके वोल्टेज को अगेन वन पर यूज करता है। दिस इज द इसको क्या कहते हैं रोटेटिंग टाइप सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड ये सेल्फ है, सेपरेट नहीं है और एक्साइटेड नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डैम्पिंग ट्रांसफार्मर? जब भी फील्ड करंट की वजह से हमारा ये टाइम हो गया जब इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसका वोल्टेज चेंज होगा तो ये इसके अंदर करंट जा रही है वो ऐसा नहीं है 10 एम्पीयर जा रही थी एकदम से 8 हो जाएगी। 10 और 8 होने में ऐसे ऑसिलेट करती है। 10 से 8 हो रही है। सपोज आपका 10 था और रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, इसकी वजह से ये 80% रह गई तो 10 से 80 एकदम से 0 टाइम में नहीं हो जाएगी। 10 से ऐसा करके 80 होगी। गेटिंग द पॉइंट ऑफ नोट? तो जब ये ऐसे होती है तो उससे क्या होगा, उसको डैम्प आउट करने के लिए, ऑसिलेशन को डैम्प आउट करने के लिए डैम्पिंग ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टू नाउ?